बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक आइडियल टीवी। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबशर। आज समथिंग स्पेशल में आज आपको शहर संगला हिल की बकर मंडी का विज़िट करवाने जा रहे हैं, जहां पर जानवरों का रेट क्या चल रहा है, कौन सा जानवर कितना सस्ता है, कितना महंगा है और पुरानी मंडी और नई मंडी में क्या फ़र्क है, सब कुछ जानते हैं और आपको जानवरों का भी नज़ारा कराते हैं। आए मेरे साथ चलते हैं। ये हम तकरीबन मांगते हो तो इसका 2 लाख हैं, लेकिन 180-70 तक इसको दे दे फरोख्त कर देना है। नाज़रीन, यहाँ पर बहस जारी थी, हमने रोककर अभी बात को आगे लेकर चलते हैं और जानते हैं कि ये किस मामले में और किस रेट के ऊपर बात हो रही है। जी साहब, ये 2 लाख रुपया जी सर। 2 लाख रुपये कह दिए उन्होंने। मैं तो सर इन्होंने कहा भी जेडे को मुनासिब है वो ले लो। मुनासिब कितना मुनासिब ऐसा कोई मसला नहीं, चलो कोई 10 घट कर लेने इधर तुसी कोई एनक ला के 20 वध कर लो। हेलो सही, मैनू सही नजर आउंड अल्लाह दी कसम, कोई मसला नहीं। चलो हाँ जी, इसका कोई मसला नहीं है। गा के हर बंदा आ रहा, हर बंदा जा रहा। सब 1,90,000 रह गए। चलो ना ताड़ी ते ना मेरी रुपया 40,000। 40,000 बकरा लेना है जी, गां लेना है जी। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਐਨਕਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। रेट वो करो ना जरा, मंडी का रेट चलता पाया, इस तरह ना करो जाती है। ਮਕਾਓ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। 190 ਕਿਹਦਾ 190 ਉਹਨਾਂ ਦਾ 190 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਰੁਪਈਆ 60,000 ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਗਾय ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਗਾय ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਘਟਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸੇ ਅੱਛਾ ਪੈਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਦੇ 1.5 ਗੇੜਾ। 4 ਮਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪਈਆ ਘੱਟ ਵੇ? ਚਲੋ 3 ਪਾ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, 3 ਪਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ 3 ਪਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1,90,000 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 1,90,000 ਤੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖ 60,000 ਤੋਂ 40,000 ਵਧਾ ਕੇ ਲੱਖ ਲੈ ਗਏ भाई। नहीं भाई एक रेट ही होगा। 190 ज़्यादा लग रहा है ना उस हिसाब से, थोड़ा सा आप भी कम करें ना ताकि बात को ख़त्म कर आगे चलें। चलो फिर और 10 कम कर लें। 180 हो गया। साढ़े लो सारे 1,20,000। 1,20,000 नहीं, इस तो थले नहीं। 180 उन्ना बोलो मैं सर साडा फाइनल 1,40,000 है, इस तो बाद नहीं जे समझ आंदा तो ठीक है। नहीं ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦਿਓ? 140 ਹੁਣ ਤੇ ਮਨਾਸਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। 2 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹ 40,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 140 ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਟੱਕ ਲਾਓ। हाँ जी, फिर एक जी फिर ਇਹਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰ 140। ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵਿੱਚ 5,000 ਦੀ ਤੇ ਮਕਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੇਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮਕਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ 140 ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ 5 ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬਤਾ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ 1,40,000। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ 140 ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ 140 ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ 150 ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ। ਚਲੋ ਵੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇ ਰਸਤਾ। ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਦਵੋ ਤੇ ਨਿਕਲੀਏ। 140 ਉਹ 150 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 140 ਭਾਈ ਫਾਈਨਲ। ਤੇ 5,000 ਵਧਾ ਲਵੋ, 5 ਉਹ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ 140 ਆਏ ਜੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਚਲੋ 1,41 ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਗਾ। 1,41 ਚ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। 1,41 ਚ ਮੁਬਾਰਕ ਭਾਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। पिछली दफ़ा जो अपना जी बकरा जो है वो 55,000 का लिया, वो वही बकरा जो है इस दफ़ा 90,000 का, 95 का, 1.25 लाख का
वो को मिलता जुलता रेट नहीं है बिल्कुल। या मसलन कि मंडी जो है ना इस दफ़ा बिल्कुल ही आग ही लगी हुई है। वो 25,000 का बकरा तो उसका 60,000 मांग रहे हैं। आखिरी इनका टाइम देख ही लेते हैं चांद रात तक, तो अगर कोई अल्लाह करे पसंद आ गया तो फिर लेना तो है ही मजबूरी। ताजर और आजर बरादरी के लिए शिकायत सेल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। अगर किसी गाहक को फ़रोख्त करने वाले को अगर कोई मसला है, कोई शिकायत है, तो यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। जानवरों की सहूलत के लिए और उनकी सेहत के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इलाज गाह का भी बंदोबस्त किया गया है। आएँ जानते हैं उनसे कि यहाँ पर किस किस्म की सहूलियात जानवरों को महफूज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फराहम की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर जी बताएंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सहूलियात दी गई हैं? गवर्नमेंट की तरफ से हर सहूलत दी जा रही है। जो बीमार होता है जानवर उसका इलाज भी किया जा रहा है। किसी को चोट लगती है, बुखार होता है, दर्द वगैरह सब कुछ उसका हल हो रहा है। चिचड़ वगैरह ये वो सारा कुछ हो रहा है। ये मुकम्मल तौर पे फ्री है या कुछ चार्जेस भी हैं? फ्री है, बिल्कुल फ्री है। मुकम्मल फ्री है। हाँ, महकमा लाइफस्टाइल की तरफ से बिल्कुल फ्री है ये। इस सहूलत के लिए ये मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। आए जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह की जो सहूलियात है गवर्नमेंट की तरफ से फराहम की गई हैं। जी पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और हमारे शहरियों की हिफाजत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कौन कौन सी जो है ना ट्रीटमेंट कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे ना लोग अक्सर आ रहे हैं जिनका ना बीपी कम हो जाता है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है और लोगों का और व्यापारी का जो व्यापारी करते हैं उनका अक्सर बीपी कम हो जाता है, और फिर उसके लिए हम ORS दे रहे हैं। इसके अलावा कोई पेशेंट है जिनको बुखार हो रहा है उनके लिए बुखार के लिए भी मेडिसिन है। किसी को दस्त लग जाती है उसके लिए भी मेडिसिन मौजूद है। मतलब फर्स्ट एड की सारी सहूलत मौजूद है। और यहाँ पे जो व्यापारी हैं जो वैसे बकरा देखने आते हैं उन सबको मेडिसिन यहाँ फ्री मिल रही है। ये गवर्नमेंट का कैंप लगा हुआ है। और अब कब से यहाँ पे मौजूद हैं और कितने दिन तक रहेंगे? सर ये हम 2-3 दिन से मौजूद हैं और 2 दिन ये कैंप और चलेगा। जी सर। कितने लोग आपके साथ, पूरी टीम कितनी है और शिफ्टिंग के हिसाब से चल रहे हैं या कैसे ड्यूटी क्या आपकी? सर ड्यूटी हमारी सिर्फ इवनिंग है। इवनिंग में 2 बजे से स्टार्ट हो रही है और मैं हूँ एक जवेद भाई हैं। तो कितने पेशेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये कोई एवरेज है? जी आज 19 पेशेंट तो चेक किया मैंने। 19 पेशेंट आए हैं जो जिनको मेडिसिन दी है, जिनमें कुछ पेशेंट थे बुखार वाले थे, कुछ को एलर्जी थी और कुछ को ये थे डायरिया था और कुछ को ये थी और ये दिल घबरा गया गर्मी की वजह से। उनको फिर ये हमने ORS वगैरह दिए हैं। इन्हें दोनों का 5 लाख रुपये मैं मंग रहा जी। दोनों का इकट्ठा ही? हाँ जी। कले कले का की है? ਇਹਦਾ मैं मंगदा पाया 270। इसका ਇਹਦਾ मैं 2,80,000 रुपये मंगया वैसे। नाजरीन बकर मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर वैसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी अपना जो है ना गोट फार्म है। उनके हवाले से पहले मैं ऑलरेडी समथिंग स्पेशल में डिटेल के साथ वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक में मौजूद है। वो यहाँ पर क्यों आए हैं, ख़ुद एक कह लें बहुत बड़े ताजर हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनको क्या यहाँ पर आकर महसूस हुआ है रेट के हवाले से और सहूलियत के हवाले से और जानवरों के हवाले से। जी बड़ी साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, क्या महसूस कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, क्या हाल चाल है? सबसे पहले सर आपका शुक्रिया कि आप ईद के लिए लाइव कवरेज सांगलेल के अवाम को दे रहे हैं। साहब मेरा जैसे आपको पता है आपके गांव के पास मेरा अपना गोट फार्म है और माशाल्लाह मैंने इस दफ़ा आपने पहले मेरा इंटरव्यू किया, मैंने 300 से ज़ायद मैंने बकरे और छतरे मैंने वहाँ पे पाले हुए थे। आपकी दुआ से मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 25 मेरे पास बकरे भी बाकी हैं और 15 छतरे बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सांगलेल में जिस तरह का मेरा रेट है कोई भी नहीं है और मैं अपना एक भी बकरा और छतरा इस मंडी में नहीं लेके आया। मैं सिर्फ और सिर्फ आता हूँ सुबह, दोपहर और शाम को मंडी का विज़िट करने के लिए कि यहाँ पे रेट क्या चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा रेट है, जो मैंने आपको 1 महीना पहले बताया था, वो रेट आपको पूरे सांगलेल इलाके में फैसलाबाद में कहीं भी नहीं मिलेगा और कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं। यहाँ पे मंडी का रेट बड़ा अप है और कभी डाउन भी है क्योंकि इस वक्त कस्टमर कम है मंडी में और जानवर ज़्यादा हैं। शायद लोगों के माइंड में ये है कि जानवर सस्ते हो जाएँ, लेकिन ये बिल्कुल उनकी भूल है, जानवर सस्ते नहीं होंगे। हम विज़िट कर रहे थे तो मैंने यहाँ पर अचानक देखा कि मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैफुर रहमान कादरी साहब बकरा ख़रीद रहे थे। तो मैंने इसको
जहन में रखते हुए कि उनके पास आ गया हूँ, उनसे गुफ्तगू भी कर लेंगे जबकि ऐसे मौज़ूआत पर वो गुफ्तगू बहुत कम करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कौन सा बकरा ख़रीदा है और कितने में ख़रीदा है। और हमारे पास यहाँ पर जो जिन्होंने फ़रोख्त किया है वो भी मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद जानवरों के हवाले से भी बात करेंगे कि वो जानवरों को क्या खिला रहे हैं और कितना रेट है और मार्केट की सिचुएशन क्या है, ख़ास तौर पर मसाले के ऊपर भी बात करेंगे। जी साहब पहले तो बहुत शुक्रिया जी कि आप हमें वक्त दे रहे हैं। अचानक जब मुलाकात हुई हमारी तो कौन सा बकरा आपने ख़रीदा है? वेलकम जी, खुश आमदेद। पाक आइडियल टीवी का शुक्रिया जी। हाफिज़ बिलाल मुबशर साहब आपका भी शुक्रिया। ये आपके सामने है जी। ये कितने में ख़रीदा आपने? ये तो जनाब बहुत सस्ता सा है, एक और इस तरह का है, तकरीबन ये 33,000 रुपये का है। अच्छा, तो इन्होंने मांगा कितना आपसे? मांग तो रहे थे 45,000 रुपया। अच्छा, 33 में बात ठीक होगी आपकी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? यार 45,000 भाई, जब भी कोई सौदा होता है ना तो उसमें ये होता है कि गाहक से अगर हम ये 33 का बना या 34 का बना है, अगर हम 34 मांगेंगे तो गाहक बोलेगा 27,000। ठीक है, तो हम उसका मार्जिन रख के बोलते हैं। ठीक है, गाहकों को भी मुतमिन करना होता है, हमने अपना हिसाब भी देखना होता है कि हमें किधर इसकी बचत है। हमने अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाना है। ये सारा दिन बकरों के साथ बकरे बने हुए हैं, कोई पता नहीं खाने का। अभी आपके सामने बंदे खाने खा रहे हैं, हम पेंडू लोग हैं, हम 6 बजे रोटी खा लेते हैं, लेकिन इस टाइम में 9 बजे 10 बजने वाले हैं। अभी बेचारे एक बंदे का मुंह इधर नवाला है और रोटी खा रहा है। जानवरों के साथ जानवर बनना पड़ता है भाईजान, इसलिए इसका हम 45,000, ये हमारे पास माशाल्लाह इससे बड़ा दुम्बा खड़ा है, इसका हम तकरीबन मांगने को 2 लाख भी मांग सकते हैं। ठीक है, माशाल्लाह देखो खूबसूरती इसकी। ठीक है, जो तकरीबन इसमें 2.5 मन 3 मन गोश्त लाजमी होगा। ठीक है, और ये एक टाइम की इसकी खुराक देखे ना मेरा भाई, तो इमरान खान साहब को सलाम है, इन्होंने कहा घबराना नहीं है, या कनाबुदू या कनस्ताही। ठीक है, हम घबराते नहीं है खान साहब, लेकिन गरीब लोगों की तरफ देखो, ये भी हमारा पैगाम है। पहले यही दुम्बा था जो पिछले साल तकरीबन इसकी कीमत होगी ज़्यादा से ज़्यादा 55,000, अभी इसका हमें 95,000 मिल रहा है, हमने नहीं दिया। और इतना जो है ना रेट अप हुआ है। पहले गरीब बंदा बकरे की कुर्बानी कर लेता था, अभी उसकी जो है ना बड़े जानवर तक भी पहुंच नहीं है। तो आप इस जानवर को क्या खिलाते हैं जो इतना सेहतमंद है? इसको भाईजान चारा खिलाते हैं, जंतर है इसको सराकी में डिंजन भी कहते हैं, उसके बाद चने हैं, उसके बाद दाने हैं, गंदम जिसको कहते हैं, उसके बाद चोखर है। इसकी देखी जाए तो मकई है, माशाल्लाह ये एक बैल जितना खाता है भाईजान। मैंने देखा है यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, तो आपको क्या लगता है कि जो नहर में पानी चल रहा है साफ़ पानी नहीं है। जानवर है, जानवर तो पी लेता है, इंसान तो नहीं पी सकता। इंसान जानवर है, प्यास लगी है छोड़ेगा तो नहीं, लेकिन जानवरों के लिए भी अच्छा पानी होना चाहिए। जिस तरह इंसान में कोरोना के ये बार बार कह रहे हैं कोरोना हो सकता है, जानवर को भी ऐसे गंदे पानी से कोरोना हो सकता है। वो तो बात की बात है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई इंतज़ाम किया गया पानी पीने के लिए? इंतज़ामिया ये क्या कह सकते हैं, जंगल में बिठा दिए, मंडी लगा दी, इधर व्यापारी भी सेफ़ नहीं है, गाहक भी सेफ़ नहीं है, साइड पर करके कोई भी पैसे छीन सकता है। ये मंडी हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि मंडी की अच्छी सेफ़ जगह पे होनी चाहिए। इधर से बाहर निकले बंदा, शहर 3 किलोमीटर दूर है, ना तो व्यापारी सेफ़ है और ना गाहक सेफ़ है। जिसने 5-5, 10-10 बकरे लेने होते हैं, 50-50, 70-70 लाख वाले, अगर उसको कोई साइड पे करके लूट लेता तो उसकी कोई सेफ्टी नहीं है। और माशाल्लाह जो हमारी हिफाजत करने वाले हैं वो तो 24 घंटे अलर्ट हैं, पता है किस टाइम पहुँचते, जिस टाइम काम हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे इन्होंने कहा कि इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जहाँ पर पानी का खातिर-ख़्वाह बंदोबस्त करे। अभी बिजली बंद है, जनरेटर मौजूद है, ना तो वो चल रहा है और ना ही बिजली के वाले से अभी तो कोई इक़दाम हो रहे हैं। चलते हैं आगे और मज़ीद देखते हैं मंडी के बारे में। नाज़रीन, इस तो पहला कि तुहानूं अज दे खास जानवर दा तुहानूं दर्शन कराइए। मैं चाहना कि पहला जो इस टाइम जोड़ी मौजूद है उहदे हवाले नाल जानने आ कि वो कितना रेट लै रहे हैं इस जोड़ी दा। तो गलबात पुछने जी की रेट ला रहे जे? जी ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ 2,80,000 ਮੰਗਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫੀਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਇਹ ਖਲ ਦੇ, ਮਕਈ ਤੇ ਚਨੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੇ, ਫੀਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰ, ਮੱਲਾ ਕਸਮਤ।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਐਂਡ ਆਖਰ ਇਸ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦੋਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ 3 ਲੱਖ ਹੀ ਵਟਿਆ ਜਾਏ, 2 ਲੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 2 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਵਟਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਭਾਣ ਵਿਕ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ, ਫੀ ਮਣ ਮਗਰ 10,000 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16,000 ਨੂੰ, ਐਤਕਾ 24,000 ਨੂੰ। 4 ਮਣ ਦਾ ਵੱਛਾ 8 ਚੌਕਾ 32,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈ ਗਿਆ 4 ਮਣ ਵੱਛੇ ਮਗਰ। ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਮੰਗਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 22 ਮਣ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਦੋਂਦਾ ਮੂੰਹੋਂ, ਅਜੇ ਚੋਕ ਦੇ ਦੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਰੱਖਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਦੈਸ਼ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਗਾਂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਡੇਲੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਜਨ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਰ, ਮੱਕੀ, ਗੰਦਮ, ਉਹਦਾ ਦਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਫੁਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਫੀਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਫੀਡ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਵਜ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਗਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਸੰਗਲਾਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਸ਼ੱਕ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਖੂਸੀਅਤ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਸਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਉੱਤੇ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਛਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਗਾਏ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਲੇਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੋ ਔਰ ਬੱਕਰੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਏ ਰੋਜ਼, ਨਏ ਮੌਜੂ, ਨਏ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।